Okay, good morning everyone. In the last lecture, we have completed the practical 2, right? I hope all of you have uploaded the PDF file for the same. Now, today we are going to start the practical 3. For that, we need to discuss, right? For example, um, okay, in a practical one, we have created the table using create table, table name, and then column name, data type size, column name, data type size, comma, column name, data type size. In this manner, we have created the table, right? And we have inserted the data. Agree? Now, in a third practical, in a tutorial, you need to create the table with constraints. So already we have studied these constraints in theory sessions. Integrity constraints. Which are there? Integrity constraints, primary key, foreign key, unique key, not null constraints, check constraints. These many constraints we have discussed, right? So see this practical list. In the practical 3, bold and underline column name indicates the primary key. Create a table account. Account number is bold and underline. It means account number is the primary key. Here, primary key is yes, primary key and first letter must start with A is the constraint is given to you which you need to apply on this account number column. Right? This attributes column is given to you. It means these constraints you need to apply. Then name column पे not null constraint, city column पे not null constraint, and balance and loan taken में condition is given to you. Balance is greater than equals to 500 and values is yes or no. It means some condition is given to you. Whenever we are having the condition, at that time we need to use the check concept. We will check whether the entered value is greater than equals to 500. If yes, then it is allowed to insert into the database. So these constraints we need to add. You can enter these constraints by both way. First, while you are creating the table, which we are going to learn today, and second, already you can set the constraints on which table which is already exist. It means practical वन में हमने अकाउंट टेबल बना दिया है, उसमें हमें कंस्ट्रेंट ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वी विल लर्न दिस मेथड. So for that we'll drop the टेबल. मैं बाद में ड्रॉप करता हूँ, उससे पहले हम कर सकता है ये वाला सब कंस्ट्रेंट्स आपको पता है लेकिन ये नहीं पता है. फर्स्ट लेटर फर्स्ट स्टार्टिंग ए, सो उसके लिए हमें लाइक प्रेडिकेट सीखना पड़ेगा, लाइक ऑपरेटर. So like operator is used to find out the particular pattern from particular column. So it is generally used in a where clause. Like example, if you want to search name is equals to Patel Jigar, so we are simply writing select star from where? Account where name is equals to a Jigar, right? So when you run this, you will find output. You can get it. Wait.
सो विल फेच दिस रिकॉर्ड पटेल जी का इसका नाम होगा, लेकिन आई वांट टू सर्च दोज नेम हुज नेम स्टार्ट विद द पी। सो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इसका नाम पी से स्टार्ट हुआ ऐसा, तो नो डेटा फाउंड। ऑलरेडी पटेल नीरज पटेल जिगर पटेल हिरन ऐसा नाम है, फिर भी नो डेटा फाउंड आ रहा है। दिस इज नॉट अ राइट वे, राइट? सो फॉर दैट वी नीड टू लर्न क्या, नेम लाइक, नेम कॉलम, कॉलम नेम यू नीड टू राइट एंड देन लाइक, किसके जैसा, यहाँ पे आपको पैटर्न देनी है, that we are going to learn right now. For that you need to remember only this percentage and underscore, ये दो सिंबल आपको सीखने तो सारे पैटर्न, सारे प्रेडिकेट, सारे पैटर्न्स आपको आ जाएंगे। So percentage, it means whenever you find the percentage symbol, it represents the zero character, one character or multiple character. It means whenever you find the percentage sign in pattern, you can replace that percentage sign with the zero character, one character or many character. Percentage sign की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, कौन सा character not specified, any character. And second, underscore, underscore मतलब underscore represent the single character. It means जहाँ पे अंडरस्कोर है वहां पे आप एक ही कैरेक्टर रिप्लेस कर सकते हो, कौन सा कैरेक्टर, कोई वहां पे एक ही कैरेक्टर, कोई भी परसेंटेज वहां पे एक कैरेक्टर मल्टीपल कैरेक्टर कुछ भी कर सकते हैं। इज इट ओके? ओके, पैटर्न कैसे लिख पाएंगे हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम लाइक ए परसेंटेज, ऐसे आपको आंसर देना है। सपोज मैं यहाँ पे ई से स्टार्ट होने वाले दे रहा हूँ एग्जांपल आपको दे दिए तो पता चले कैपिटल की परसेंटेज, वेट करना पड़ेगा। as I said today I am having a network issue। यस पटेल जी का नेम आ गया, ई से स्टार्ट हुआ है ऐसा, ठीक है, एस से कोई स्टार्ट ही नहीं होगा। सपोज आई एम राइटिंग स्मॉल ए, इट मीन्स ए परसेंटेज, दिस इज द पैटर्न, इट मीन्स ए से स्टार्ट होगा फिक्स, और परसेंटेज मतलब परसेंटेज की जगह हम जीरो कैरेक्टर रख सकते हैं, वन कैरेक्टर रख सकते हैं या फिर मल्टीपल कैरेक्टर रख सकते हैं। सो मैं अभी आपको नेम बोल रहा हूँ, आपको मुझे बोलना है वेदर इट इज वैलिड आंसर फॉर दिस पैटर्न, ठीक है, इज दिस वैलिड आंसर फॉर दिस पैटर्न ए, इसका आउटपुट ए आ सकता है। सिर्फ टेबल पॉइंट ऑफ व्यू नो मत भी सोचो, इस जनरल प्रेडिकेट आंसर क्या हो सकता है, ए परसेंटेज का आंसर क्या, ए से स्टार्ट होने वाले, okay. Everyone just wait for few minutes. Let me do something because I am having lots of network connectivity. Just
Okay, is it visible? Yes, sir. Okay. Due to the network problem, it couldn't be where we yes, here. A percentage. What are the possibility to get the names from a percentage? A से start होने वाले सभी नेम. So can I write Anuj? Is it valid name? Can we get from this pattern a percentage? Yes or no? Okay. इससे मैं अभिषेक मिलेगा. इस नेम से मुझे अभिषेक मिलेगा. अंशु मिलेगा. अब मैं बोला ए मिलेगा. ए इज वैलिड और नॉट? ए इज वैलिड और नॉट? Is A is valid? Yes, because in the, as I told you, instead of percentage sign you can put 0 character, 1 character और multiple character. So मैंने यहाँ पे 0 character रखा है. ठीक है. ए भी चलेगा. ए भी चलेगा. ए भी चलेगा. हाँ, कुछ भी चलेगा. Anything start from A will be considered under this pattern, right? Now इसका मतलब कोई मुझे सिखाएगा परसेंटेज ए. लास्ट में ए हो. Yes. Can anyone from online? What do you mean by percentage A? What do you mean by percentage A? Ending with A. Yes, right. Ending with A. For example, Manisha, Tina, Reena, Sita, Geeta, फिर चढ़िया. सरने भी चलेगी ना उसमें, तो कुछ भी चलेगा. लेट मी चेक. पार्सनिया. फिर कौन है? कोई नहीं. यस, बालसरा, कृष्णा, एवरीथिंग. यस, पीपलिया, गजेरा, पटोरिया. एवरीथिंग कैन बी कंसिडर्ड as a percentage A, right? Now what it means? Percentage A, percentage. What it means? Okay, जिस word में हो at any position. A should be anything. A should be at anywhere, right? Okay. Can you give me the names for this pattern? Yagnesh, yes, right. Raj is right. Ramesh is right. Then Suresh is right. Suresh? No, Suresh. Not Suresh. Abhishek, Aniket, Yagnesh, Patel, Patoria, Bhatti. Anything at any position. It includes both. Starting with A, ending with A और in between A. कुछ भी आ सकता है. ठीक है. कुछ भी आ सकता है. Okay, right. Now, what it means? A underscore. What it means? A के बाद सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए. Can you give me the example? AB, AB, AC, AA. A के साथ A to Z, राइट. A के साथ कोई भी A चलेगा. सिंगल A चलेगा. Abhishek Bhatti, you are wrong. Word after A, Ram, that is wrong. That is wrong. A अंडरस्कोर मतलब अंडरस्कोर की जगह आप सिंगल कैरेक्टर रिप्लेस कर सकते हो. तो राम में 3 कैरेक्टर हो गया. इसकी लेंथ फिक्स हो गई 2 कैरेक्टर. 2 कैरेक्टर में एक कैरेक्टर कौन सा? A, जो स्टार्टिंग होगा.
और दूसरा कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, सो ए नहीं चलेगा, राइट? ए इज नॉट प्रॉपर थिंग. नाउ इफ आई राइट हियर अंडरस्कोर ए, उसका मतलब एंड्स विथ ए, तो एंड्स विथ ए में क्या आएगा? बी ए, सी ए, कुछ भी चलेगा, ठीक है? सिर्फ ए भी नहीं चलेगा, सिर्फ ए नहीं चलेगा, क्योंकि फिक्स लेंथ हो गई इसकी, ठीक है? इसका मतलब क्या? अंडरस्कोर ए परसेंटेज, ए मतलब इसका ऑनलाइन स्टूडेंट्स, underscore a percentage, what it means? There should be one letter ahead a, there should be one letter ahead a minimum. Second word a, second character of any string must be a, second position पे a आना चाहिए. एग्जाम्पल, लेंथ कोई भी हो सकता है, जयेश, मारवाड़ी, मारवाड़ी itself, टेबल, सेकंड कैरेक्टर ए होना चाहिए. सेव, अब स्क्रीन पे देखो कितने सारे वर्ड मिल जाएंगे. गैलरी, फिर एप, नो नो सॉरी, लैंग्वेज, डेटा, नेम, बैलेंस, टेकन, मैनेजमेंट, right? So these all are the a underscore a percentage. Now underscore आपको स्पेस नहीं रखनी है. while you are using the underscore, do not put the paste, ऐसे ही करना है, लेकिन आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है कितनी अंडरस्कोर है. so that's why I am explaining you. underscore the underscore a, उसका मतलब ए के पहले 3 लेटर और बाद में 2 लेटर. Okay, fine. It means length of the string is fixed. 6 letter. Out of this 6 letter, fourth letter must be A. Fourth letter must be A. ठीक है? हम उसके एग्जाम्पल में नहीं जाते अभी. वो जो लेटर जो रिप्लेस करेंगे वो उस कॉलम के डेटा टाइप का बेस होगा ना, मतलब उसमें सिर्फ कैरेक्टर यूज करते हैं, न्यूमेरिकल वर्ड यूज करते हैं. ये कैरेक्टर के लिए पैटर्न कर सकते हो अगर हुआ तो. Okay, most of pattern we have covered. Let's see, is there any remaining? A percentage, percentage a, percentage देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया. ओके, लास्ट वन इज रिमेनिंग. ए परसेंटेज हो, उसका मतलब सिंपल आपको पता है, ए से स्टार्ट हो, ओ से एंड हो, बीच में कुछ भी हो, ठीक है? सो दिस इज लाइक प्रेडिकेट. आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर, राइट? अब मैं यहाँ पे ड्रॉप टेबल कर दे रहा हूँ. ड्रॉप टेबल अकाउंट, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है सब कुछ. नाउ आई, एज यू नो, क्रिएट टेबल, table name, column name, data type, size. Similar way, create table account number varchar 2 5 up to this it is normal. Now syllables क्या सेट करना है? प्राइमरी की. तो प्राइमरी की यहाँ पे लिख दो वर्ड प्राइमरी की, तो सेट हो जाएगी. प्राइमरी की कैसी होगी? यूनिक होगी और नॉट नल होगी. यूनिक मतलब डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है. प्रीवियस टेबल में हमें 3-4 बार रो डुप्लीकेट करने दे रहे थे. इससे क्या होता है? आपका डेटाबेस बहुत सारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? फिर क्या है? फर्स्ट लेटर मस्ट स्टार्ट विथ ए. तो फर्स्ट लेटर वो कंडीशन आप यहाँ पे भी लिख सकते हो और लास्ट में भी लिख सकते हो, कॉलम लेवल और टेबल लेवल. यहाँ पे प्राइमरी की लिखा वो कॉलम लेवल पे है. यहाँ पे लास्ट में कोमा करके लिखा चेक अकाउंट नंबर लाइक ए परसेंटेज. यहाँ पे केस सेंसिटिव है, ए स्मॉल लिखो तो भी
डिफरेंट होगा, ए कैपिटल लिखो तो भी डिफरेंट होगा, राइट। सो ए परसेंटेज से स्टार्ट होने वाले अकाउंट मिल गए। दूसरी कॉलम क्या है, नेम वेर के टू नॉट नल कंस्ट्रेंट, सो ऐसे नॉट नल लिखेंगे। तीसरी सिटी नॉट नल कंस्ट्रेंट, ठीक है। फोर्थ वन बैलेंस नंबर 10,2, फोर्थ वन बैलेंस, ये कंडीशन है बैलेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कॉलम लेवल पे कंडीशन नहीं लिखी है, लास्ट में लिखी, चेक बैलेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500, check balance greater than equals to 500. If this condition is satisfied, then and then it allowed to enter the data into table. So हम चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा। एंड लास्ट क्या है, लोन टेकन वैल्यूज नो और यस, कैपिटल नो और कैपिटल यस डालेंगे तो ही अलाउड करेगा। सो ये लोन टेकन वेर के टू और कंडीशन मैंने लिखी यहाँ पे। आप इसकी तरह साथ में भी लिख सकते हो, यहाँ पे देखो दूसरे टेबल में प्राइमरी की चेक लोन नंबर लाइक एल परसेंटेज, कॉलम लेवल पे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, रन करवाओ, टेबल क्रिएटेड। हाउ वी कैन चेक वेदर द कंस्ट्रेंट्स, यस अकाउंटेबल प्राइमरी की 1, इट मींस प्राइमरी की सेट हो गई। नलेबल इट मींस डेस, इट मींस नॉट नल, आप नल नहीं रख सकते उसको। फिर देखो नेम एंड सिटी कॉलम में हमने क्या कंस्ट्रेंट्स डाला था, नॉट नल, तो यहाँ पे भी डेस डेस। लास्ट में देखो बैलेंस और लोन टेकन, उसमें हमने चेक कंस्ट्रेंट डाला था, तो उसमें नल डाल सकते हो, तो यहाँ पे टिक मार्क है, उसका मतलब आप उसको नल रख सकते हैं, नल का मतलब अननोन वैल्यू, ठीक है। अब मैं जस्ट 1 मिनट में यहाँ पे आपको वैल्यू सारे इंसर्ट करके वी विल चेक ऑल द पॉसिबिलिटी वेदर वी आर इंसर्टिंग राइट और रॉन्ग, राइट। अब देखो फर्स्ट टेबल में आपने वाई ई एस डाला है, ई एंड एस स्मॉल, तो वो वहां पे नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे आपने कंस्टेंट्स में क्या डाला है, वाई कैपिटल वाई ई एस। तो मुझे पहले यहाँ पे now how to cross verify whether the constraints are applied on particular column or not. So पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू गलत डालेंगे और बाकी की वैल्यू सब सही डालेंगे और चेक करते जाएंगे, ठीक है। तो पहली वैल्यू पर क्या थी हमारी, प्राइमरी की, प्राइमरी की इट मींस नल नहीं हो सकती, तो हम नल लिखेंगे और चेक करते हैं। यस वी आर गेटिंग एरर, इट मींस राइट, कंस्ट्रेंट सेट हो गया है, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू दिस बिकॉज इट्स अ प्राइमरी की। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या था हमारा, ए से स्टार्ट हो, तो मैं यहाँ पे बी से स्टार्ट हो ऐसा वैल्यू डाल रहा हूँ। चेक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड, देखो यहाँ पे हमने चेक कंस्ट्रेंट डाला था, क्या डाला था, चेक अकाउंट नंबर लाइक ए परसेंटेज, तो अकाउंट से हमें एरर मिल गई, तो एरर से आधा एरर तो आप खुद सोल्व कर पाएंगे कि यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ी की है, ठीक है। सो चेक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड, अब मैं यहाँ पे स्मॉल ए डाल रहा हूँ तो भी यही एरर आएगी, ठीक है। अब कैपिटल ए डाल रहा हूँ तो इंसर्ट हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम पे सही कंस्टेंट लगे, दूसरी कॉलम पे क्या था, नॉट नल, इट मींस ब्लैंक नहीं रख सकते, तो मैं अभी इसको नल लिख के जा रहा हूँ, कैन नॉट इंसर्ट नल, क्योंकि हमारा कंस्टेंट क्या था, नॉट नल, तो नॉट, तो वो भी कंस्टेंट सेट हो गया। अब देखो नल और कैरेक्टर में कितना फर्क है, आप जैसे यहाँ पे सिंगल इनवर्टेड कोमा कर रहे हो और एंटर मार रहे हो तो वो एंटर नहीं होने देगा क्योंकि वो नल इक्विवेलेंट ही हुआ। स्पेस रखो या फिर डॉट रखो, चलो डॉट रखता हूँ तो भी मना कर दिया, क्यों, यूनिक कंस्टेंट, क्योंकि A001 ऑलरेडी इज देयर, समझ में आया। सो यहाँ पे हमें 2 करना, हाँ कोई भी करो, सो डॉट अलाउड है, यहाँ पे व्हाइट स्पेस करो तो भी अलाउड है, ठीक है, तो वो भी इंसर्ट करने देगा, ठीक है। यही रो को मैं दूसरी बार इंसर्ट करूं तो डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है क्योंकि प्राइमरी की सेट की है, दिस इज द एडवांटेज ऑफ प्राइमरी की, राइट, राइट, ओके। नाउ मैं यहाँ पे इंटर की जगह पटेल मितेश डाल दूँ
और मेहसाणा सेम कंस्ट्रेंट। Okay, now am I audible? Okay. So यहाँ पे नॉट नल कंस्टेंट डालो और चेक करो। कैन नॉट इंसर्ट नल, इट मीन्स सिटी का कंस्टेंट भी सही है हमारे पास। ठीक है, अब बैलेंस, बैलेंस कितना था? बैलेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500, तो उससे पहले लेस डाल के देखते हैं 50। चेक कंस्टेंट वायोलेटेड, रूल वायोलेटेड हुआ है। ठीक है, 499 डालो तो भी मना करेगा, 999 डालो तो अलाउ करेगा। वन रो इंसर्टेड, इट मींस चेक कंस्टेंट जो कंडीशन हमने डाली वो भी सही है। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ पे मैं स्मॉल वाई एस कर रहा हूँ, चेक कंस्टेंट वायोलेटेड, स्मॉल वाई एस अदर देन दिस ए बी, नो नो, मे बी नो, कैपिटल नो, यस, टू वैल्यू में से ही एंटर करने देगा। क्लियर? So by this way you can check the constraints are applied on your table or not. Agree? Do you have any query, any doubt? So this is all about constraint. One constraint is remaining, that is foreign key. यहाँ पे देखो सारे 4 टेबल है, चारों टेबल फिर से बनाने हैं। आपको क्या करना है? ऑल ऑफ यू हैव टू ड्रॉप ऑल ओल्ड टेबल्स, चारों टेबल डिलीट कर दो और नए से बनाना है। अब लोन टेबल में देखो, लोन नंबर, प्राइमरी की, फर्स्ट लेटर वो पता है आपको, फॉरेन की कैसे अप्लाई करनी है वो पता नहीं है। लेकिन फॉरेन की का मतलब क्या? प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज यूज्ड इन अनदर टेबल। सो यहाँ पे लिखा है फॉरेन की रेफरेंसेस अकाउंट नंबर ऑफ अकाउंट टेबल, मतलब अकाउंट टेबल की अकाउंट नंबर को प्राइमरी की है उसको यहाँ पे रिफर करना है रेफरेंस, तो उसको हम ऐसे रिफर कर सकते हैं। जो भी चेंज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अकाउंट नंबर वेर के 25, रेफरेंसेस इज द कीवर्ड, स्पेलिंग सही लिखना वरना नहीं होगा। रेफरेंसेस इज द कीवर्ड, देन अकाउंट टेबल एंड अकाउंट टेबल की प्राइमरी की अकाउंट नंबर। कंडीशन इज दैट अकाउंट नंबर प्राइमरी की पहले होनी चाहिए। आप डायरेक्टली लोन टेबल बनाएंगे तो वो मना कर देगा, क्योंकि प्राइमरी की के बिना फॉरेन की नहीं लगती। ठीक है, सो दिस इज दी फॉरेन की। प्राइमरी की तरह सिर्फ फॉरेन की लिखने से नहीं होगा, समझ में आ रहा है? सो ये आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको पेस्ट कर दे रहा हूँ, और इसको भी मैं आपको अकाउंट टेबल भी पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बाकी सब चीज सेम ही है, लोन नंबर, अमाउंट, नॉमिनल। एक चीज आपको यहाँ पे देखो, लोन डेट में ब्लैंक है एट्रीब्यूट, उसका मतलब कंस्टेंट नहीं ऐड करना, दैट्स इट, सिंपल। फिर सारे वैल्यूज इंसर्ट करनी है जो प्रैक्टिकल 1 में आपने की है। यहाँ पे देखो इंसर्ट द रिकॉर्ड्स यूजिंग प्रैक्टिकल 1, सो सारी रोज आपको फिर से इंसर्ट करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू मेंटेन द वर्ड फाइल। पता चला, वहां से कॉपी एंड पेस्ट करना। जहाँ पे मिस मैच आ रहा है एरर के अकॉर्डिंग आप सोल्व कर लो, अगर नहीं हो रहा है मुझे बताओ, मैं यहाँ यहीं पे हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, प्लीज टेल मी राइट नाउ। एनी क्वेरी? So from next lab, we will start the queries of practical 3. First, we will complete all 4 tables, right? Any query, Abhishek, Raj? क्योंकि दो ही यज्ञेश तो यहीं पे है, दो ही आंसर दे रहे हैं, बाकी सब नहीं दे रहे।
Okay, then go ahead.